اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وہ ہستی جن کی طہارت پر قرآن گواہ ہے، وہ بیٹی جسے نبی علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، وہ ماں جن کی گود سے حسنین کریمین جیسے گل کھلے، اور وہ خاتون جو قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یہ ویڈیو حضرت فاطمہ کی پاکیزہ زندگی، ان کے صبر، ان کی عبادت اور ان کے علم اور ان کی بے مثال وفا کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ان کے کردار سے سیکھنے کی کوشش کریں اور ان کی زندگی کے انمول نقوش کو دل میں اتاریں، کیونکہ سیدہ فاطمہ صرف ایک نام نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو قیامت تک راہ دکھاتی رہے گی انشاءاللہ۔ خاتون جنتی حضرت سیدہ فاطمہ کی سیرت مبارکی سب مسلمانوں بالخصوص عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی ماں تھی۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے والد حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ بے پناہ دکھ درد کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ لائیں۔ آپ نے فاقے بھی برداشت کیے مگر ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ نے لوگوں کے ظلم و ستم کا بھی سامنا کیا مگر پھر بھی آپ کا عزم کم نہ ہو سکا۔ آپ کی حیات طیبہ ہمیں صبر و استقلال، جرات و بہادری اور فرض ادائیگی کا درس دیتی ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ ہر مسلمان عورت کے لیے قابل تقلید ہے، اور ہر عورت کا یہ فرض اولین بنتا ہے کہ وہ آپ کی سوانح عمری کا مطالعہ کرنے اور آپ کے اقوال و افعال پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عاجزانہ التجا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام اور اپنے اسلاف کے اقوال و افعال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ پاک اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ اور اہل بیت کی محبت میں رخصت ہوں، اور بروز حشر ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ آپ کا نام مبارک فاطمہ فطم سے ہے، جس کے معنی روکنے یا چڑھانے کے ہیں، اور فاطمہ کے معنی ہوا روکنے والی، چڑھانے والی کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس سے اور اس کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ ایک اور روایت جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ پاک نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے الگ کر دیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا مشہور لقب زہرا ہے، جس کے معنی کلی یعنی انتہائی خوبصورت کے ہیں۔ آپ کا لقب زہرا اس وجہ سے مشہور ہوا کہ آپ کو کبھی بھی حیض نہ آیا، اور نہ ہی کسی بچے کی پیدائش کے وقت آپ کو نفاس آیا، چنانچہ آپ جب ہر قسم کی غلاظت سے پاک و صاف تھیں، اسی لیے زہرا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پوری عمر میں آپ سے کوئی نماز بھی قضا نہ ہوئی، اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، بے شک فاطمہ پاک دامن ہے، اور اللہ پاک نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام دی ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے کچھ گندم، پیسی اور روٹیاں بنائیں۔ حضرت حسن اور حسین بھی بھوکے تھے، اور حضرت علی بھی روزے سے تھے، اور گھر میں صرف وہی چند روٹیاں تھیں۔ تو جب سب دسترخوان پر بیٹھنے ہی والے تھے تو اچانک دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، اے رسول اللہ کی بیٹی، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دو۔ حضرت فاطمہ نے فوراً ساری روٹیاں فقیر کو دے دیں اور خود بھوکے رہ گئیں۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، اور دوسرے ہی دن پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک یتیم آیا، حضرت فاطمہ نے پھر سارا کھانا دے دیا۔ تیسرے دن ایک قیدی آ گیا، اور انہوں نے تیسری بار بھی اپنا کھانا دے دیا۔ 3 دن بھوکے رہنے کے باوجود انہوں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرمائی، اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شاندار شان ہے سیدہ فاطمہ کی۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے قبل کبھی زمین پر نہ اترا تھا،
उसने अपने रब से इजाजत मांगी कि मुझे सलाम करने के लिए हाजिर हो और मुझे ये खुशखबरी दे कि हजरत फातिमा अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है। इस तरह हसन और हुसैन जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हैं। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर हजरत सैयदा फातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। आपने फरमाया, ए अबू बकर, मैं इस सिलसिले में हुक्म इलाही का मुंतजर हूँ। हजरत अबू बकर ने उसका जिक्र हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु से किया तो उन्होंने कहा, ए अबू बकर, क्या आपको मना कर दिया गया? फिर हजरत अबू बकर ने हजरत उमर फारूक को तरगीब दिलाई तो हजरत उमर फारूक ने हुजूर पाक की खिदमत में हाजिर होकर सईदा फातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु से भी यही फरमाया कि ए उमर, मैं इस सिलसिले में हुक्म इलाही का मुंतजर हूँ। सदीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से उसका जिक्र किया तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, फिर तो इसके अहल हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। एक दिन हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक और हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। दौरान गुफ्तगू हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का जिक्र हुआ तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से इनके साथ निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर आपने फरमाया, ये मामला अल्लाह पाक के ज़िम्मे है। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निकाह का पैगाम नहीं भेजा। शायद उन्होंने ऐसा गुर्बत की वजह से किया हो और मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को हजरत अली के लिए रोक रखा है। फिर हजरत अबू बकर सदीक ने हजरत उमर फारूक और हजरत साद बिन मुआज से मशूरा तलब किया कि इनकी इस बारे में क्या राय है, और अगर उनका इरादा हो तो हम सब मिलकर हजरत अली के पास जाते हैं और उन्हें इस बात पर आमादा करते हैं कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से खातून जन्नत सईदा फातिमा से निकाह पर राजी हों, और अगर वो तंग दस्ती की वजह से ऐसा करते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अबू बकर, अल्लाह आपको उसकी तौफीक दे। और फिर सब मिलकर मस्जिद नबवी से निकले और हजरत अली को तलाश करते हुए एक अंसारी के बाग की जानिब जा निकले, जहां हजरत अली बाग में बतूर उजरत ऊँटों के लिए पानी निकालने में मसरूफ थे। तीनों हजरात ने हजरत अली को देखा तो हाल अहवाल दरियाफत किया। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ए अली, मुअज़्ज़िज़ीन कुरैश ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सईदा फातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की, मगर आप अलैहिस्सलाम ने यह कहकर इन्हें लौटा दिया कि यह मामला अल्लाह पाक के ज़िम्मे है। हम सब आपको नेक आदात और अतवार का मालिक पाते हैं और आपको इसका अहल समझते हैं। हुजूर नबी पाक आपके रिश्तेदार भी हैं। फिर आपको किसने इस बात से रोका है? और मुझे दिल से उम्मीद है कि अल्लाह पाक और रसूल अल्लाह ने हजरत सईदा फातिमा को आप ही के लिए रोक रखा है। रावी कहते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब हजरत अबू बकर की बात सुनी तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आप कहने लगे, ए अबू बकर, आपने मुझे ऐसे काम पर आमादा किया जो रुका हुआ था, और मुझे ऐसे काम की जानब मुतवज्जा किया जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी पसंद है और ऐसे रिश्ते के लिए कोई मुझ जैसा नहीं, लेकिन गुर्बत ने मुझे इस काम से रोक रखा है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ अली, ऐसा न कहो, अल्लाह और उसके हबीब रसूलुल्लाह के इल्म के नज़दीक ये दुनिया और उसमें जो कुछ है वो उड़ते गुबार की मानंद है। फिर हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक और हजरत साद बिन मुआज की तरगीब पर हजरत अली शेर खुदा इल मोमिनीन हजरत सलमा के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। हजरत सलमा ने दरियाफत किया, कौन है? तो हजरत आला ने जवाब भी न दिया था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दरवाज़ा खोल दो कि ये वो है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वो भी उनसे मोहब्बत करता है। हजरत सलमा ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप किसका जिक्र करते हैं? हुजूर ने फरमाया, ये मेरा भाई है और मुझे सारी मखलूक से ज़्यादा है प्यारा है। हजरत सलमा फरमाती हैं, मैं तेज़ी से उठी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद थे।
फिर जब तक मैं बाहर न चली गई। वो अंदर दाखिल न हुए। हजरत अली ने हुजूर नबी करीम को सलाम किया और हुजूर ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अली हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गए और कोई बात करने की बजाय जमीन कुरीदने लगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली, या कुछ काम था? तुम बिला झिझक बताओ, तुम्हारी हाजत पूरी होगी। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आपने मुझे अपने चचा अबू तलब और चच्ची फातिमा बनती असद से लिया और उस वक्त में ना समझ था। आप अलैहिस्सलाम ने मेरी रहनुमाई फरमाई, मुझे अदब का करीना सिखाया, मुझे नेक बनाया, मुझ पर मेरे माँ बाप से ज्यादा शफकत फरमाई और अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे हिदायत अता फरमाई और मुझे शिरक से महफूज रखा। आप दुनिया व आखिरत में मेरा वसीला हैं और मैं ये पसंद करता हूँ। मैं आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में इसी गरज से हाजिर हुआ हूँ कि आप अलैहिस्सलाम से आपकी शहजादी खातून जन्नत सईदा फातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर करता हूँ। हजरत उम्मी सलमा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम का चेहरा देखा जो इस वक्त खुशी और मुसरत से दमक रहा था। हजरत अली ने जब नबी करीम के सामने सैदा फातिमा से निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया तो आपने सैदा फातिमा से फरमाया कि अली ने तुमसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार करता है, उस बारे में तुम्हारी क्या राय है? हजरत सीदा फातिमा ने खामोशी इख्तियार की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, तुम्हारे पास क्या है जिससे तुम फातिमा का हक मेहर अदा करोगे? हजरत अली ने अर्ज किया, अल्लाह पाक की कसम, मेरी हालत आपसे पुशीदा नहीं। मेरे पास एक जिरा, एक तलवार और पानी लाने के लिए एक ऊंट के सिवा कुछ भी नहीं है। नबी करीम ने फरमाया, तुम तलवार से अल्लाह पाक की राह में जहाद करोगे और उसके बगैर गुजारा नहीं है, और ऊंट से तुम अपने और घर वालों के लिए पानी लाते हो और सफर में उस पर सामान भी लाते हो, और अब तुम्हारे पास जिरा है। मैं उसके इवज से तुमसे अपनी बेटी का निकाह करता हूँ और मैं तुझसे राजी हूँ। फतह खैबर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के बाद अपनी जिरा ली और बाजार चला गया ताकि उसे फरोख्त कर सकूं। फिर मेरी जिरा हजरत उस्मान गनी ने 400 दिरहम में खरीद ली और जब मैंने उनसे दिरहम वसूल कर लिए और उन्होंने जिरा अपने कब्जा में ले ली तो मुझसे फरमाया, ए अली, अब मैं उस जिरा का आपसे ज्यादा हकदार हूँ और आप इन दिरहम के ज्यादा हकदार हैं। मैंने कहा, क्यों नहीं? हजरत उस्मानी गनी ने फरमाया, मैं ये जिरा आपको बतूर हदिया देता हूँ। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने वो दिरहम और जिरा ली और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपसे हजरत उस्मानी गनी के हुस्न सलूक पर इनके लिए खैर और बरकत की दुआ फरमाई। नबी करीम ने हजरत अंस के जरिए अकाबर सहाबा कराम, जिनमें हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक, उस्मानी गनी, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा और दीगर सहाबा शामिल थे, इन्हें बुलाया और जब सब जमा हो गए तो आपने खतबा अरशाद फरमाया और बाद में हम्द व सना फरमाई और बोले, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दूं और उनका महर 400 मिस्काल मुकर्रर करता हूँ। ए अली, क्या तुझे मंजूर है? उसे बखुशी कबूल करता हूँ। हुजूर ने 3 मरतबा इसकी तिकरार की और फिर दुआ फरमाई कि अल्लाह तुम दोनों को बरकत दे और तुम्हें नेक औलाद अता फरमाए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सईदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को 3 चीजें दें। नंबर 1 सियाह रंग की एक चादर, नंबर 2 एक मश्क और नंबर 3 एक तकिए जिसमें इज़खर की घास भरी हुई थी। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत सीदा फातिमा के निकाह के बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें यानी उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म दिया कि फातिमा के लिए जहीज तैयार करें और उनको हजरत अली के पास पहुंचाएं। हजरत सीदा फातिमा के लिए एक अलहदा हुजरे का इंतजाम किया गया और फिर मैदान बतखाक के किनारे से नरम मुट्टी मंगवा कर हमने अपने हाथों से इस हुजरे में फर्श तैयार किया और फिर खरमा की छाल से 2 तकिए तैयार किए और हुजरे के एक कोने में कपड़े और मश्क लटकाने के लिए लकड़ी गाड़ दी। इस सब के बाद हजरत सीदा फातिमा को इस हुजरे में पहुंचा दिया। उसके बाद फिर दैवत वलीमा में हमने लोगों को खुजौर
और अंगूर खुलाए, और हमने हजरत सीदा फातिमा से बेहतर कोई शादी नहीं देखी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सदीक को बुलाया और मुट्ठी भर दिरहम दिए और फरमाया, इनके इवूज तुम फातिमा के लिए मुनासिब चीजें खरीद लाओ। और फिर हजरत सलमान फारसी और हजरत बिलाल को उनके हमराह भेजा ताकि वो सामान उठाने में इनके मुआवन हों। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम ने 63 दिरहम अता फरमाए और मैंने उनके इवज रोई से भरा हुआ मोटे कपड़े का एक बिस्तर, चमड़े का एक दस्तरख्वान, खजूर के पत्तों से भरा चमड़े का तकिया, पानी का एक मुश्कीजा, एक कोजा और नर्म ऊन का एक पर्दा खरीदा। फिर मैंने हजरत सलमान और हजरत बिलाल ने वो सामान उठा लिया और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर पेश किया। आप अलैहिस्सलाम ने सामान देखा तो रोने लगे और आसमान की जानिब निगाह बुलंद की और फरमाया, इलाही, ऐसे लोगों को अपनी बरकत से नवाज जिनका शियार ही तुझसे डरना है, यानी जिनका काम ही अल्लाह पाक से डरना है। हजरत अली से एक मर्तबा एक मुनाफिक ने कहा, अगर तुम मेरी लड़की से शादी करते तो मैं तुम्हें इतना जहीज देता कि ऊंटों की कितारें लग जाते। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, शादी तकदीर से नहीं होती और न ही तदबीर से होती है, बल्कि ये अल्लाह पाक की तरफ से है और यही सबसे बड़ा जहीज है। और मेरी निगाह नहीं पहले कभी मालो मता पर गई और न अब जाएगी। जब आप इस मुनाफिक को ये जवाब दे चुके तो निदाए गैबी आई, आसमान की जानिब निगाह बुलंद करो। आपने आसमान की जानिब निगाह बुलंद की तो आसमान में ऊंटों की कितारें लगी हुई थी और उनकी पुष्ट पर इनाम व इकराम के ढेर थे। आपने फरमाया, ए मुनाफिक, मुझे अल्लाह पाक ने फातिमा का जहीज दिखा दिया और वो ऐसा है कि रुए जमीन पर क़ियामत तक किसी ने न देखा होगा और न देख सकेगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सीदा फातिमा को जो जहीज दिया उसमें 2 जोड़े, 2 बाजू बंद नकरई, एक चादर, एक प्याला, एक चुक्की, 2 गिलास, एक मुश्क, एक कटोरा पानी पीने के लिए, 2 रजाइयां जो कतान की बनी हुई थीं, 4 गरे जो ऊन से भरे हुए थे और 2 तकिए जो खजूर के पत्तों से भरे थे। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सैदा फातिमा का निकाह हजरत अली शेर खुदा से कर दिया था तो हजरत सैदा फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान, आपने मेरा निकाह ऐसे शख्स से कर दिया जिसके पास न माल है और न कोई और चीज। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फातिमा, क्या तू इस पर राजी नहीं कि अल्लाह पाक ने अहले बीत में से 2 अशखास को पसंद किया, एक तेरे बाप को और दूसरे तेरे शोहर को, तुम इसकी हरगुज नाफरमानी न करना। हजरत अबू हरीरा से भी यही रवायत है कि रसूलुल्लाह ने सीदा फातिमा से फरमाया किया, तुम उस पर राजी नहीं कि तुम्हारा निकाह उसके साथ किया गया है जो रोए इस्लाम के अवलीन मुसलमानों में से है और इल्म के एतिबार से दाना है, जबकि तुम उम्मत की औरतों में बेहतरीन हो, जिस तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम में थी। हजरत फातिमा जब रुखसत होकर अपने घर तशरीफ ले गईं तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और दरवाजे पर खड़े होकर अंदर आने की इजाजत मांगी। जब आपको घर के अंदर आने की इजाजत मिली तो आपने पानी का एक बर्तन हजरत अली से मंगवाया और उसमें अपने दोनों हाथ डालने के बाद पानी हजरत अली की सीने और बाजू पर छिड़का और फिर हजरत सईदा फातिमा को बुलाया जो शर्म व हया से झुझकती हुई तशरीफ लाएं। आप अलैहिस्सलाम ने इन पर भी पानी छिड़का और फरमाया, ए फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान के बेहतरीन शख्स के साथ किया है। हजरत इमरान बिन हसीन रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमरा हजरत सईदा फातिमा के घर गया। हुजूर पाक ने उनके दरवाजे पर पहुंचकर फरमाया, अस्सलामु अलैकुम बेटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो हजरत सीदा फातिमा ने कहा, तशरीफ लाइए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ कोई और भी है? बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने दरियाफत किया, कौन है? आपने फरमाया, इमरान बिन हसीन रजी अल्लाहु अन्हु है। हजरत फातिमा ने कहा, उस जात की कसम जिसने आप अलैहिस्सलाम को हक के साथ मबूस फरमाया, मेरे ऊपर सिर्फ एक चादर है। आप अलैहिस्सलाम ने इतनी चादर इन्हें दे दी, जिसे लेने के बाद सैयदो फातिमा ने कहा, मैंने अपना जिस्म तो ढान अप लिया, मगर सिर कैसे ढान पोंगी? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास एक पुरानी चादर थी
तो आपने वो पुरानी चादर भी आपको दे दी और फरमाया इससे सर ढांप लो। फिर हम घर में दाखिल हुए और आपने हजरत सईदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का हाल दरियाफत किया। हजरत सईदा फातिमा ने कहा, कल से फाका है। आप अलैहिस्सलाम ने सुना तो आप दीदा हो गए और फरमाया, बेटी मैंने खुद 3 दिन से कुछ नहीं खाया, हालांकि मैं तो अल्लाह पाक का महबूब हूँ और तुम्हारी निस्बत अल्लाह पाक के ज्यादा करीब हूँ। मैंने आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी और फाका इख्तियार किया। फिर आपने अपना दस्ते मुबारक सईदा फातिमा के कंधों पर रखा और फरमाया, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और मैंने तुम्हारा निकाह उसके साथ किया है जो दुनिया व आखिरत में सरदार है। हजरत फातिमा रज़िया अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहाँ हैं? मैंने अर्ज किया, आज जब हमने सुबह की तो हमारे घर खाने को कुछ न था। तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुझसे कहा, मैं इन दोनों को साथ ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि ये कहीं तुम्हारे पास भूख की वजह से न रोएं और तुम्हारे पास उन्हें खिलाने को कुछ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कहाँ गए हैं? तो मैंने कहा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फलां यहूदी की तरफ गए हैं। हुजूर ने ये सुना तो इस यहूदी के पास तशरीफ ले गए और वहाँ हजरत सईदुना इमाम हसन और हजरत सईदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा एक हौज के पास खेल रहे थे और कुछ बची हुई खजूरें इनके सामने पड़ी थीं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली, क्या तुम मेरे बेटों को गर्मी की शिद्दत से पहले घर नहीं ले जाओगे? हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमारे पास घर में खाने के लिए कुछ न था। अगर आप अलैहिस्सलाम कुछ देर बैठ जाएं तो मैं बीबी फातिमा के लिए ये बची हुई खजूरें चुन लूं। तो रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा हो गए और हजरत अली ने बची हुई खजूरें एक कपड़े में जमा के और चल दिए। एक शहजादे को हुजूर दो आलम ने उठा लिया और दूसरे शहजादे को हजरत अली शेर खुदा ने उठा लिया, यहाँ तक कि घर पहुँच गए। एक मर्तबा सरदारानी नौजवान, जन्नत के फूल हजरत सईदुना इमाम हसन और हजरत सईदुना इमाम हुसैन बीमार हो गए। हुजूर अकरम ने अपने सुहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के हमराह इनकी इयादत के लिए गए। कुछ सुहाबा कराम ने हजरत अली से कहा, आप इनकी सेहत के लिए नजर मान लें। तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नजर मान ली कि जब मेरे दोनों बेटे सेहत याब होंगे तो मैं और मेरी जूजा सईदा फातिमा हम 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह पाक के फजल व कर्म से हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को सेहत कामिला नसीब हुई और हजरत अली और हजरत फातिमा ने अपनी नजर पूरी करने के लिए 3 रोजे रखे। जब पहला रोजा रखा तो अफ्तार के वक्त घर में कोई चीज मौजूद न थी। हजरत अली ने कर्ज लिया और थोड़े से जौ लाकर हजरत सईदा फातिमा को दिए, जिन्हें पीसकर उन्होंने आटा तैयार किया। जब शाम को इफ्तार के वक्त खाना तैयार हुआ और हजरत अली, हजरत फातिमा और हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दस्तरखुवान पर अफ्तार के लिए तशरीफ फरमा हुए तो दरवाजे पर किसी साइल ने आवाज दी, आए नबी के घर वालों, मैं मस्कीन हूँ और कई दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। हजरत सईदा फातिमा ने हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, हम ये खाना इस मस्कीन को दे देते हैं। और फिर वो सारा खाना उस मस्कीन को दे दिया गया और घर वाले फाका से रहे। अगले रोज भी रोजा रखा गया और जब इफ्तार का वक्त हुआ और हजरत फातिमा ने खाना तैयार किया, फिर जब सब घर वाले दस्तरखुवान पर इफ्तार के लिए बैठे तो इस दौरान एक साइल ने आवाज दी, आए नबी के घर वालों, मैं यतीम हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। हजरत बीबी फातिमा ने हजरत अली साहब से फिर कहा, ये खाना इस यतीम को दे दें, हम पानी पीकर रोजा अफ्तार कर लेंगे। तीसरे दिन भी रोजा रखा गया और जब इफ्तार के वक्त हजरत सईदा फातिमा ने दस्तरखुआन बिछाया तो दरवाजे पर एक साइल ने आवाज दी, ए रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं गुलाम हूँ और कई दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। बीबी फातिमा ने हजरत अली से कहा, ये खाना उसे दे दें। तो हजरत अली ने वो कहाना उस गुलाम को दे दिया और यूं एक मर्तबा
फिर सब घर वालों ने पानी से रोजा इफ्तार किया। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की सिहते याबी के लिए मानी गई। नजर के 3 रोजे पूरे हो चुके थे और 3 दिन के फाका ने इन्हें इंतहाई कमजोर कर दिया था। हुजूर पाक अलैहि सलाम जब मिलने के लिए आए और अपने अहल व अयाल को इस हाल में देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने इनको सब्र की तलकीन की। इस दौरान हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम तशरीफ लाए और सलाम के बाद अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक ने आपके अहल बीत के इस फेल को बेहद पसंद किया और अल्लाह पाक इनके हक में फरमाता है कि वो जो अपनी नज़र पूरी करते हैं और इस दिन से डरते हैं जब बुराई फैली हो और वो खाना खुलाते हैं उसकी मोहब्बत में मस्कीन को और यतीम को और गुलाम को, और कहते हैं हम ये सब खास अल्लाह पाक की रिजा के लिए करते हैं। बेशक हमें अपने रब से ऐसे दिन का खौफ है जो बेहद सख्त है और अल्लाह ही पाक इन्हें उस दिन के शर से महफूज रखेगा और इन्हें ताजगी और हमेशगी का इनाम दिया जाएगा, शादमानी अता फरमाएगा और इनके सब्र पर इनके लिए जन्नत की बशारत दी और रेशमी कपड़े अता फरमाए। वो जन्नत में तख्त पर तकिया लगाए होंगे और वहां न धूप होगी और न सर्दी और दरख्तों के साए इन पर झुके होंगे और उनके गुच्छे इनके लिए झुका देते होंगे और उन पर चांदी के बर्तन और कोजे होंगे। जन्नत में एक चश्मा है जिसे सलसबेल कहते हैं और उसके गर्द खिदमतगार फिरेंगे हमेशा रहने वाले, जिन्हें आप देखेंगे तो मोती बिखरे हुए समझेंगे और जब इधर उधर निगाह दौड़ाएंगे तो सुकून पाएंगे और उनके रब की जानिब से इन्हें पाकीज़ा शराब पिलाई जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि ये तुम्हारा इनाम है और तुम्हारी मुहनत कबूल हुई। हजरत आयशा सदीक़ा रज़िया अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक सुबह हुजूर पाक अलैहि सलाम को घर से बाहर जाते देखा। आपने इस वक्त एक चादर ओढ़ रखी थी जिस पर सियाह ऊन से कजादों के नक्श इस चादर बने हुए थे। बस हजरत इमाम हसन आए तो आपने इन्हें इसमें दाखिल कर लिया। फिर हजरत इमाम हुसैन आए और आपने इनको भी इस चादर में दाखिल कर लिया। फिर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा आए तो आप अलैहि सलाम ने इनको भी इस चादर में दाखिल कर लिया। फिर हजरत अली आए और आपने इन्हें भी चादर में दाखिल कर लिया और फिर आपने कुरान करीम की तलावत की कि अल्लाह तो यही चाहता है, ऐ नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ सुथरा कर दे। हुजूर नबी करीम मुसलमानों की माँ हजरत उम्मी सलमा के घर पर थे जब अल्लाह का फरमान नाजिल हुआ कि अल्लाह तो यही चाहता है, आए नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ सुथरा कर दे। हमारे प्यारे आका हुजूर पाक अलैहि सलाम कई दिनों से फाके से थे। जब मामला कुछ दुश्वार हुआ तो आप अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ ले गए, मगर वहां भी खाने को कुछ ना पाया। आप बीबी फातिमा के पास गए और इनसे खाने का पूछा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं। हुजूर नबी करीम वहां से तशरीफ ले गए तो हजरत फातिमा की पड़ोसन 2 रोटियां और एक गोश्त का टुकड़ा बतूर नजर लाई। हजरत सईदा फातिमा ने इन रोटियों और गोश्त के टुकड़े को रख लिया और कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम के लिए रखूंगी। फिर हजरत सीदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन में से किसी को हुजूर के पास भेजा और जब हुजूर अकरम तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह पाक ने मुझे कुछ अता किया है जो मैंने आपके लिए रख लिया। आपने फरमाया वो बर्तन मेरे पास लाओ। चुनांचा वो बर्तन लाया गया और जब इस बर्तन से कपड़ा हटाया गया तो वो गोश्त और रोटी से भरा हुआ था। हजरत फातिमा जान गई कि ये अल्लाह पाक की बरकत से हुआ है। हुजूर पाक ने जब खाने के मुतालिक दरियाफत किया तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया, ये अल्लाह पाक की जानिब से है। बेशक अल्लाह पाक जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क दे। आप अलैहि सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें बनी इसराइल की औरतों की सरदार जैसा बनाया। उनको जब अल्लाह पाक कोई रिस्क देता फिर इसके बारे में उनसे पूछा जाता तो कहती, यह अल्लाह पाक की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है।
हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने एक रात फाके से गुजारी, सुबह हुई और मैं खाने की तलाश में निकला तो रास्ता में एक दिरहम पड़ा हुआ मिला। मैंने इसे उठा लिया और इससे आटा और गोश्त खरीद कर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को ला कर दिया। उन्होंने आटा गूंद कर रोटियां पकाएं और जब फारिग हुए तो कहने लगे, अगर मेरे वालिद भी होते तो मैं उनकी दावत करती। तो हजरत अली हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और आप उस वक्त पहलू के बल आराम फरमा रहे थे और फरमा रहे थे, मैं भूख से अल्लाह पाक की पनाह चाहता हूँ। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमारे पास कुछ खाना है, आप भी तशरीफ लाएं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उस वक्त हिंडिया जूश मार रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसमें से आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिए भी निकालो। हजरत फातिमा ने एक बड़े प्याले में उनके लिए निकाल दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें से हफ्सा के लिए भी निकालो। फिर हजरत फातिमा ने उनके लिए भी एक प्याले में निकाल दिया, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के लिए निकलवाया। फिर फरमाया, अब अपने वालिद और शौहर के लिए भी निकालो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने हमारे लिए भी निकाल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अब निकालते जाओ और खाते जाओ। जब निकालने के बाद हंडिया उठाई तो वो वैसे ही भरी हुई थी। फिर जब तक अल्लाह पाक ने चाहा हम इसमें से खाते रहे। बनी सलीम कबीले का एक शख्स रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आप जादूगर हैं। हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इसकी बात सुनी तो आगे बढ़कर इसे सबक सिखाने का इरादा किया। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें रोक दिया और फिर इस शख्स को आखिरत के अजाब से डराया और उसे खुदाए वाहिद की इबादत की दावत दी। वो शख्स आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर और आपका अखलाक देखकर कायल हो गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने इससे पूछा कि तेरे पास कितना माल है? उसने अर्ज किया, मैं बनु सलीम का सबसे गरीब शख्स हूँ। सहाबा कराम की जानिब देखा और फरमाया, तुम में से कौन है जो उसे ऊंट खरीद कर दे, और जो इसे ऊंट लेकर देगा अल्लाह पाक उसे बेहतरीन जजा अता फरमाएगा। हजरत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, मेरे पास एक ऊंटनी है, वो मैं उसे देता हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो उसका सिर ढापे? हजरत अली शेर खुदा ने अपनी दस्तार मुबारक इसके सर पर रख दी। फिर आपने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम उसके खाने का इंतजाम करो। हजरत सलमान फारसी उठे और मस्जिद नबवी के इतराफ में मौजूद चंद घरों से खाने के मुतालिक पूछा, मगर कहीं से कुछ भी खाने को न मिला। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु हजरत सीदा फातिमा के घर तशरीफ लाए और सारा वाक़िया बयान किया। हजरत फातिमा आबदीदा हो गईं और फरमाया, अल्लाह की कसम जिसने मेरे वालिद को नबी बरहक बनाकर भेजा, हमारे घर में कई रोज से फाका है, मगर तुम मेरी ये चादर ले जाओ और इसे शमऊन यहूदी को जाकर देना। फातिमा बनते मोहम्मद की चादर है, इसे रखकर कुछ कर्ज दे दे। हजरत सलमान फारसी चादर लेकर शमऊन के पास गए और जब उसने हजरत फातिमा की चादर देखी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो कहने लगा कि अल्लाह की कसम, यही वो नेक लोग हैं जिनकी खबर अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को दी थी, और मैं सादिक दिल से हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता हूँ। ये कहकर शमऊन ने कलमा पढ़ा और हजरत फातिमा की चादर लौटाते हुए कुछ जू दे दिए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु वापस हजरत फातिमा के पास आए और सारा वाक़िया बयान किया। हजरत फातिमा ने शमऊन के हक में दुआए खैर फरमाई और उन जू को पीस कर रोटी बनाई और हजरत सलमान फारसी को दी। हजरत सलमान फारसी ने अर्ज किया कि आपके घर भी फाका है, कुछ अपने और बच्चों के लिए रख लें। हजरत फातिमा ने फरमाया, ये खाना अल्लाह पाक की राह में दिया है, इसलिए अब इसमें से हमारे लिए लेना दरस्त नहीं। हजरत सलमान फारसी वो खाना लेकर हुजूर पाक के पास पहुंचे और तमाम वाक़िया बयान किया। आपने वो खाना उस नो मुस्लिम को दिया और अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। जब आपने अपनी बेटी के चेहरे को देखा तो वहां फाका और नकाहत के आसार नमाया थे और चेहरे पर जर्दी चढ़ाई हुई थी।
आपने हजरत फातिमा को प्यार किया और इन्हें तसली देते हुए अपना रुख अनवर आसमान की जानिब उठाया और दुआ की, ए अल्लाह, फातिमा तेरी बंदी है तो इससे राजी रहना। रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा अपने सहाबा कराम से पूछा, औरत के लिए कौन सी चीज बेहतर है? तमाम सहाबा कराम खामोश रहे। हजरत अली फरमाते हैं, मैं उठा और घर आकर हजरत फातिमा से कहा, आज रसूलुल्लाह ने हमसे पूछा कि औरतों के लिए कौन सी चीज बेहतर है। हजरत फातिमा ने फरमाया, ना औरतें गैर मर्दों को देखें और ना ही मर्द गैर औरतों को देखें। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने वापस जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये जवाब पेश किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक दिन हजरत अबू बकर सदीक मस्जिद की जानब निकले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने इनकी आहट सुनी तो वो भी निकले और हजरत अबू बकर सदीक से पूछा, उस वक्त किस चीज ने आपको निकाला? उन्होंने फरमाया, भूख की शिद्दत ने। हजरत उमर फारूक ने सुना तो कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मुझे भी भूख ने निकाला। ये भी दोनों बातें कर रहे थे कि हुजूर भी तशरीफ लाए और ने दरियाफत फरमाया, तुम्हें किस चीज ने निकाला? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, हमें भूख की शिद्दत ने निकाला। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ मबहूस फरमाया, मुझे भी इसी ने निकाला है। फिर हुजूर पाक हजरत अबू बकर व हजरत उमर फारूक सब मिलकर हजरत अबू अयूब इंसारी के घर गए। हजरत अबू अयूब इंसारी इस वक्त अपने बाग में थे। उन्हें जब इत्तिला हुई तो वो फौरन खजूरों का एक खूशा उतार कर ले आए और फिर उन्होंने बकरी का एक बच्चा ज़ब्ह किया और उसका आधा गोश्त भून लिया और आधे गोश्त का सालन बना लिया। जब आप अलैहिस्सलाम के सामने खाना रखा गया तो आपने हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम एक प्याला मेरी बेटी फातिमा को दे आओ, उसने कई दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया। अय्यूब ने वो प्याला हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को पहुंचा दिया। आपने इस पुरतकल्लफ खाने के बाद रक़त आमीज लहजे में फरमाया, ये वो नेमतें हैं जिनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। आशिक़ रसूल की शान बहुत बुलंद और अजीम है। एक सच्चा आशिक़ रसूल वो है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत में अपनी ज़िंदगी को ढालता है और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करता रहे। रसूलुल्लाह की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और कुरान और हदीस में उनकी मोहब्बत और अहमियत को बार बार बयान किया गया है। आशिक़ रसूल का दिल नबी इकरम की मोहब्बत से बहरा होता है। वो हमेशा आपकी सीरत और तालीमात को याद करता है। इसी तरह गुस्ताखी रसूल एक संगीन जुर्म है जिसका इर्तिकाब करने वाले शख्स को दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ा अजाब होगा। कुरान और हदीस में जहां नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत का खास एहतमाम किया गया है, वहीं गुस्ताखी रसूल की सज़ा भी वाज़ेह की गई है। दुनिया में भी तमाम मुसलमान मुआशरे में गुस्ताखी रसूल को सख्त सज़ा देने के हक़ में हैं। कई इस्लामी मुमालिक में कानूनन गुस्ताखी रसूल को सज़ाए मौत दी जाती है। ताहम हर मुल्क के कानूनी निज़ाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारे माशरे में इंशाअल्लाह मौत ही पाएगा। आज का ईमान अफरूज वाक़िया एक गुस्ताखी रसूल को वासिले जन्नहम करने वाले का है, जिनका नाम हाजी मांक साहिब है। वाक़िए को पूरा सुनिएगा। करोंडी ज़िला नवाब शाह तहसील और डैदन से 15 मील दूर एक बस्ती का नाम है। मिर्ज़ाइयों ने चैलेंज किया कि हम मुसलमानों से मुनाजिरा करेंगे। मौलाना लाल हुसैन अख्तर वहां पहुंचे और सिंध के तमाम बड़े उलमा चेयरमैन भी वहां पहुंचे। हजारों का मजमा हो गया और लोग बहुत से जमा हो गए हैं। मौलाना लाल हुसैन अख्तर अपने नंबर में खड़े हुए और ऐलान किया कि मैं आज साबित करूंगा कि मिर्जा झूठा था, कज़ाब था, उसका दावई भी छोटा था, इल्हाम भी छोटे थे और वही भी झूठी थी, पेशन गोइयां भी झूठी थीं, वो भी झूठा था और उसकी तमाम किताबें झूठी थीं। अब जो मिर्जाई मुकाबला में था उसका नाम अब्दुल हक था। उस बदबख्त मलून को पता नहीं किया ख्याल आया, वहां पर चूंकि उसकी जमीन थी, बहुत सारे उसके मज़ारे थे। मिर्जाइयों की एक बस्ती थी और वो बंदूकों के साथ आया था। तो उस लांती ने खड़े होकर कहा, मैं भी साबित करूंगा कि मोहम्मद भी ऐसा था। नाउजुबिल्लाह। यानी उस लांती ने कहा, मैं भी साबित करूंगा तुम्हारा।
नबी ऐसा था, शौर पड़ गया। उसने जो अल्फाज कहे थे, ये सुनकर तमाम मुसलमान जज्बात में खड़े हो गए। दूसरी तरफ बंदूकें थीं। कुछ हालात ऐसे थे कि पुलिस भी थी। बात टल गई, लड़ाई न हुई, लेकिन मुसलमान बड़े परेशान हुए। मिर्जाई चले गए। मुनाजरा यहाँ पर खत्म हुआ कि ये जुमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो माफी मांगे, ये उसने हमारे सीने मूंग दिले हैं, हमें उसने चहरी से ज़िब्ह कर दिया है, और हम मुसलमान बेगैरत नहीं हैं। ये जुमले इतने संगीन हैं कि हमें मौत आ जाती, लेकिन ये जुमले हमें बर्दाश्त न करने पड़ते। मुसलमान रोते हुए गए। हाजी मानक कहता है कि मैं अपने घर गया। ये हमारी कौम का शहर था। बलूचों की 500 लड़ियां हैं। मैं भी बलूच हूँ। बलूचों में जो सरदार हैं, मेरे लड़ी इनमें है। हाजी मानक कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी कि एक मिर्जा मलऊन ने गुस्ताखी की है, तो सिर पकड़ लिया। मैं रोता रहा। ये है बात सारी बस्ती में फैल गई कि अब्दुल हक ने इतनी गुस्ताखी और इतनी जुबान दराजी की है, इतनी बेअदबी की है, इतनी बकवास की है। हर मर्द की जबान पर यही बात थी। हाजी मानक कहते हैं कि मैं अपने घर आया तो मेरा घर बदला हुआ था। मेरी बच्चियां रो रही थीं और मेरी बीवी का रुख एक तरफ था। मैंने पानी मांगा, बीवी ने न दिया। मैंने बीवी से कहा पानी दो, लेकिन वो बात ही न करे मुझसे, और कमरे में जाकर अंदर से कुंडी मारकर कहने लगी, मानक तेरी सफेद दाढ़ी है। इसी साल तो हज करके आया है और मदीना मुझे साथ ले गया था। गुंबद खिजरा पर तो रोता था। अब तो ने अपने महबूब करीम के मुताल्लिक ये जुमला सुना, बेगीरत जिंदा वापस आ गया। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का उम्मती है, तो ये कैसे कर सकता है? तुझे शर्म नहीं आई? जा, मैं तेरी बीवी नहीं हूं, मुझे इजाजत दे दे। मैं मीके जा रही हूं, और ये बैठियां भी तेरी बैठियां नहीं हैं। मैं तुझ बेगैरत को अपना खावंद नहीं बनाती। मेरी बैठियां तुझे बाबा नहीं कहेंगी। इतनी बड़ी तूने दाढ़ी रखी है। मुस्तफ़ा अलैहि सलाम के खिलाफ ये सुनकर तो जिंदा लौट आया, मर नहीं गया। हाजी मानक कहता है, इस जुमले ने मेरे अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत की रोशनी बहर दी। मुझे करंट सालगा। हुजूर करीम अलैहि सलाम की जिंदगी का सारा नक्शा मेरे सामने आ गया। प्यारे आका की मोहब्बत ने जोश मारा तो मैं फिर बेखुद हो गया, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और उस मिर्जाई अब्दुल हक की तरफ चल पड़ा। कुल्हाड़ी हाथ में ले ली, और हाजी साहब के पास कुछ भी नहीं था, ना पिस्तौल, रिवाल्वर वगैरह उसके पास नहीं था। बस हाजी साहब ने दिल में फैसला कर लिया था कि वो गुस्ताख भूखने वाला कुत्ता जिंदा रहेगा, या मैं रसूलुल्लाह का आशिक जान दे दूंगा। मैं सीधा गया, देखा अब्दुल हक फिर रहा था। उसको ख्याल भी ना आया कि ये बूढ़ा मुझे कुछ कहेगा। 50 साल हाजी मानक की उम्र थी, सफेद दाढ़ी थी। कहते हैं कि मैं वैसे बूढ़ा हूं, मगर दिल जवान था। खून मेरा जवान था, रगों में जो खून था वो जवान था। मैंने अब्दुल हक को करीब जाकर कहा, ओ गुस्ताख, ओ मिर्जाई कुत्ते, ओ मुर्तद, आज तेरा आखिरी दिन है तो बचकर नहीं जा सकता। तगड़ा हो जा, मोहम्मद का आशिक तेरे पास पहुंच चुका है। अब उसने मेरे हाथ में कुल्हाड़ी देखी तो दौड़ने लगा। पांव में ढेला अटका तो मुना के बल गिरा। वैसे वो ढेला नहीं, अटका था। कुदरत ने धक्का दिया, मैं पास पहुंच गया। मैंने कुल्हाड़ी के वार करने शुरू कर दिए। मैंने उसको जूते से सीधा किया। मैंने उसके सीने पर कुल्हाड़ियां मारी, और मैं जोर से वहां कहता रहा कि इस सीने में नबी का कीना है। फिर मैंने दिमाग पर कुल्हाड़ी मारी। मैंने कहा, तेरा दिमाग खराब था। फिर मैंने जुबान को पकड़कर कुल्हाड़ी से काटा। मैंने कहा, ये बहुनुक्ती थी। फिर मैंने उंगली को लकड़ी पर रखकर काटा, और मैंने कहा, जब तो ने गुस्ताखी की थी तो उंगली मदीने की तरफ उठाई। मैं उस उंगली को काट दूंगा जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करेगी। हाजी मानक कहते हैं, मैंने जब उसको खत्म किया तो मेरे कपड़े उसके खून से खून आलूद हो गए। उस मुर्तद के खून से मुझे नफरत आ रही थी, बदबू आ रही थी। मैं सीधा थाने चला गया। थानेदार ने मुझे देखा कि सर पर पगड़ी नहीं, हाथ में कुल्हाड़ी है, कपड़े खून से भरे हुए हैं। वो थानेदार मुझे जानता था। मैं अल्लाह के फजल से शरीफ आदमियों में शमार होता था।
मैं कभी कभी मस्जिद में अजान भी देता था। थानेदार ने कहा, मानक खैर है? मैंने कहा, कल जिस कत्ते ने, जिस मुर्तद ने और जिस लानती ने, जिस गुस्ताख ने गुस्ताखी की थी, अल्लाह पाक के हुक्म और फजल से आज वो जबान खामोश हो चुकी है। उसके खून को कुत्ते चाट रहे हैं। मुझे हत्थकड़ी लगाओ, मुझे गिरफ्तार करो। थानेदार खामोश हो गया, फिर रोने लगा। अपनी टोपी उतार कर मेरे पाँव में डाल दी। कहने लगा, मैं तुझे गिरफ्तार करके मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत से महरूम हो जाऊं। पुलिस वाले दौड़ दौड़ कर हाजी मालिक के लिए दूध ला रहे हैं, रो रहे हैं। कहते हैं, हमसे वो कारनामा ना हो सका जो एक बूढ़े ने कर दिया है। हाजी मानक, हम तुझे मुजरम कहीं या मोहम्मद का आशिक कहीं, हम तुझे हथकड़ी लगाकर कल रसूलुल्लाह के सामने शर्मंदा हो जाएं। मैं हुकूमत को पट्टी उतार कर दे दूंगा, मगर तुझे गिरफ्तार करूंगा कि रसूलुल्लाह के सामने शर्मंदा नहीं हूंगा। मैं ऊपर इत्तला देता हूँ, मानक तो मेरा मेहमान है, तो कातिल नहीं, तो मदीना के सुल्तान का आशिक है। हाजी मानक कहते हैं कि उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की। सखर पुलिस को इत्तला दी, वो भी आए, मेरे करीब कोई ना आया। मुझे कहा, कार में बैठ जाओ। वो आपस में बातें करने लगे और फिर कहने लगे, हम औरतों को पकड़ते हैं, आज तक हमने डाकू पकड़े, आज तक हमने चूर पकड़े हैं, आज इसको ले जा रहे हैं जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है। मानक कहते हैं कि मैं सखर जेल में गया तो तमाम डाकू इकट्ठे हो गए, देखकर रोने लग पड़े। कोई कहने लगा, मैंने माँ को कत्ल किया। दूसरे ने कहा, मैंने बहन को कत्ल किया। एक ने कहा, मैंने बाप को कत्ल किया। मानक, तेरी कस्मत का क्या कहना, मोहम्मद के दुश्मन को कत्ल करके आया है। और फिर रोने लगे, कहने लगे, जील तो ये है कि जिससे खुदा भी राजी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी राजी है। जब ये बात हर जगह पीली के हाजी साहब ने ये कारनामा किया है तो मुहतरम मोहम्मद अली जालंधरी वहां पहुंचे। मौलाना काजी एहसान अहमद शुजा आबादी भी वहां पहुंचे। काजी साहब रोते रहे और फरमाया, हम तेरी जियारत के लिए आए हैं। मैं खुद वहां पहुंचा, मौलाना वहां पहुंचे, मौलाना अमरूटी वहां पहुंचे। कराची से लाहौर तक इसको लोग देखने आए, जिसने अपने बढ़ापे में जवानी दिखाई थी। हाजी मानक कहते हैं कि रात को मैं कोठड़ी में सोया तो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्कुराते हुए जियारत हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरी कुर्बानी का पैगाम पहुंच चुका है। मानक न घबरा, वकील न करना, वकालत में मोहम्मद खुद करूंगा। हाजी मानक, तेरी गैरत मोहम्मद को पसंद आ गई। मैं तमाम जहानों का नबी तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि तेरी पेशानी में चूम लूं। तूने सारी जिंदगी में जो कारनामा किया है, फरिश्ते भी इस पर रश्क कर रहे हैं। तो फिर इस तरह मुकद्दमा हुआ, लंदन तक के वकील आए, पूरा रबुआ चनाब नगर जुहूक दिया गया, पैसों के अंबार लग गए, ये सारे जमा हुए। उधर वकालत मोहम्मद ने की, बयानात हुए। वकीलों ने कहा कि आप ये बयान दे दें कि मैंने ये काम नहीं किया। मानक ने खड़े होकर कहा कि मैंने ये काम किया है। ये कुल्हाड़ी अब भी मौजूद है। जो भी मेरे मुस्तफ़ा की गुस्ताखी करेगा उस पर मैं यही कार्रवाई करूंगा। 3 साल मुकदमा चला। हज ने जो फैसला लिखा है वो सुन ले आप भी। हज ने जब हालात सुने, उसने फैसला लिखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम, नबी का आशिक, पैगंबर का उम्मती, मोहम्मद अरबी का दीवाना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब अब्दुल हक ने नबी इकरम की गुस्ताखी की तो हाजी मानक दीवाना बन गया। हाजी मानक की अकल ठिकाने ना रही। हाजी आपे से बाहर हो गया। इसने उस वक्त कत्ल किया जब इसकी अक्ल ठिकाने नहीं थी। जिसकी अक्ल ठिकाने न हो उस पर कानून लागू नहीं होता। ये नबी का दीवाना है। मैं दीवाने पर कोई कानून लागू नहीं करता। उसने जो कुछ किया ठीक है और मुर्तद की सजा भी कत्ल है। खुदा की कसम, फिर मानक जिंदा रहा, उनमें चलता फिरता रहा। मोहम्मद ने इतनी निगाह डाल दी है कि आज तक बंदूकों वाले उसका बाल बीका नहीं कर सके। रसूलुल्लाह की खत्म नबूत की गुलामी आज भी खाजी साहब की हिफाजत कर रही है। हाजी मानक 70-80 साल का है, लेकिन इस तरह मालूम होता है कि अभी हूज़-ए-कौसर से नहा कर आया है। मैं जब भी उस इलाके में जाता हूँ उसको बुलाता हूँ, देखता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। मुझे कहता है, दीन पूरी मेरी तरफ क्यों देखते हो? मैंने कहा,
मैं उन आंखों को देखता हूँ जिन्होंने मोहम्मद अरबी को देखा है। करोंडी से जाकर तस्दीक करें। अगर बात गलत हो जाए तो मुझे जो सजा दोगे मंजूर है। ये करोंडी पर डेदन से 15 किलोमीटर दूर है। मानक वहां रहता है। उसको दूर से देखकर आप समझ जाएंगे कि इस बस्ती में कोई इतना हसीन नहीं जिस पर मोहम्मद की निगाह पड़ चुकी है। 80 साल की उम्र है, लेकिन मालूम होता है कि अभी हौजी कोतर से पानी पीकर निकला है। हाजी साहब कहते हैं कि 8 दफा झील में मुझे हुजूर पाक की जियारत हुई। हर 8वें दिन आपकी जियारत हो जाती थी। आप तसल्ली देते थे कि मानक न घबराना, मोहम्मद तेरी विकालत कर रहा है, कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या दोनों जहां तेरे है। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए और रसूलुल्लाह से सच्चे दिल से मोहब्बत करने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशा अल्लाह आमीन। अल्लाह पाक हमें अपने दीन पर साबित कदम रखे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें अपनी हदायत दे। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अल्लाह पाक हमें अपनी हदायत दे और हम सबको अपनी हदायत मिले, रजा की राह पर चलने की तौफीक दे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो बराही कर्म हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तला मिल सके। याद रखें, दुनिया की तमाम खुशियां आरजी हैं, लेकिन अल्लाह की रिजा और आखिरत की कामयाबी हमारी असल मंजिल है। उसके रास्ते पर चलना ही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो आपके आंसुओं को रोक नहीं पाती, जो दिल को छू जाती है? ये जिंदगी के वो लम्हात हैं जो हमें याद दिलाते हैं अल्लाह की रहमत कितनी करीब है हम सबके। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इस्लामी वीडियो जहां हर वाकया आपके ईमान को ताज़ा करेगा इंशा अल्लाह। ये एक हकीकत है कि किसी पैगंबर को ऐसे मुखलिस और जानिसार साथी मुयस्सर ना आ सके जैसे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की जमायत है। सहाबा कराम वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिनकी शान और अजमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम कुरान करीम में बयान फरमाई है। कहीं उनके ईमान की गवाही दी गई, जैसा कि फरमाया, यही लोग हैं जो हकीकत में मोमिन हैं, उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, मगफिरत है और बाइज्जत रिज्क है। कहीं उनकी सच्चाई बयान की गई, जैसा कि फरमाया, वही लोग हैं जो सच्चे हैं। सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हु के मुख्तसर हालात जिंदगी और कहीं उनको अम्मत के बेहतरीन अफराद करार दिया गया और फरमाया कि मुसलमानों, तुम वो बेहतरीन अम्त हो जो लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाई गई है। तुम नेकी की तलकीन करते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पाक पर ईमान रखते हो। अगर अहल किताब ईमान ले आते तो ये उनके हक में कहीं बेहतर होता। उनमें से कुछ तो मोमिन है मगर उनकी अक्सरियत नाफरमान है। इसी तरह नबी करीम ने अपनी अहादीस में भी उन मुकद्दस हस्तियों की शान और फजीलत को बयान फरमाया। एक हदीस में है कि मेरी अम्मत के बेहतरीन इश्खास वो हैं जिनके दरमियान मेरी बासत हुई, यानी सहाबा कराम, जो उनके बाद आए ताबईन, फिर जो उनके बाद आए तबा ताबईन। इसी तरह एक और हदीस में फरमाया कि मेरे असहाब को बुरा भला मत कहो। अगर कोई शख्स अहद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में खर्च कर डाले तो उनके एक मद यानी मुट्ठी गला के बराबर भी नहीं हो सकता और न उनके आधे मुट्ठी के बराबर। माशाअल्लाह, ये शान है हमारे सहाबा कराम की। सहाबा कराम ही के जरिए ये दीन, ये कुरान पाक हम तक पहुंचा है और कुरान करीम की अव्वलें मुहाफिज भी सहाबा कराम हैं। लेकिन उसके बावजूद आज दुनिया में ऐसे ऐसे लोग जाहिर हो चुके हैं कि सहाबा कराम जैसी मुकद्दस पाक हस्तियां भी उनकी ज़बान दराजी से महफूज नहीं रहीं। आज हमारी नौजवान नस्ल के जहनों में सहाबा कराम का बग़ज़ दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। नौजवान नस्ल के दिल में सहाबा कराम का एहतराम और एतिबार ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए आज इस बात की ज़रूरत है कि सहाबा कराम की शान, उनका मकाम और उनकी अजमत को मंबर व मेहराब से खूब बयान किया जाए।
ताकि कोई सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु से बग़ज़ रखते वाला हमारे नौजवानों के दिलों से सहाबा कराम की अजमत, शान और एली ख़त्म न कर सके। माशाअल्लाह, आप दीन से प्यार करने वाले हैं, मुबारक हो आपको बहुत बहुत माशाअल्लाह। तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी मुबारक का वाक़या पेश खदमत है। उशरा मुबशरा सहाबा में से एक और खुश नसीब सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। ज़माना जाहिलियत में आपका नाम अब्दुल काबा था। जब इस्लाम लाए तो नबी पाक ने उनका नाम अब्दुर्रहमान रख दिया। आपकी पैदाइश आम अल्फील यानी जिस साल अब्राहा ने खाना काबा पर चढ़ाई की थी कि 10 साल बाद हुई। आपने इब्तिदाई दौर में इस वक्त इस्लाम कबूल कर लिया था जब हज़रत रसूलुल्लाह ने दार अरकम में अभी पनाह नहीं ली थी। आप उन 8 हज़रात में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, यानी साबिकीन ओलीन में से हैं। नेज़ आप इन 5 खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्होंने सैयदना सदीक अकबर ही की दावत पर इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। नेज़ आप उन खुश नसीब लोगों में से भी हैं कि जिनको हज़रत उमर फारूक ने शूरी का मंबर बनाया कि ये खिलाफत के अहल हैं, लिहाजा मशूरा के बाद इनमें से किसी एक को चुन लिया जाए। लिहाजा आप 5 में भी थे, 6 मैं भी थे और 8 मैं भी थे और 10 यानी इशरा मुबशरा में शामिल थे। उनके फ़ज़ाइल में जो सबसे बेहतरीन फजीलत है वो ये कि एक मर्तबा उनके पीछे नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात नमाज भी अदा फरमाई। उमरू बिन वहीब ये कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत मुगीरा बिन शाबा के साथ थे कि किसी ने उनसे पूछा, हज़रत अबू बकर सदीक ही के अलावा इस उम्मत में कोई और भी ऐसा शख्स हुआ है जिसकी इमामत में नबी करीम ने नमाज पढ़ी हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर तफसील बताते हुए फरमाया, एक दफ़ा हम नबी करीम के साथ किसी सफ़र में थे। फज्र के वक्त नबी करीम ने मेरे खीमे का दरवाज़ा बजाया। मैं समझ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए जाना चाहते हैं। चनांचा में नबी पाक अलैहि इस्लाम के साथ निकल पड़ा। हम चलते चलते लोगों से दूर चले गए। नबी करीम अपनी सवारी से उतरे और क़ज़ा हाजत के लिए चले गए और मेरी नज़रों से गायब हो गए। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकता था। थोड़ी देर के बाद नबी करीम वापस तशरीफ लाए और फरमाया, मगीरा तुम्हारे पास पानी है? मैंने अर्ज किया, जी हाँ, और ये कहकर मैं वो मुश्कीज़ा लाने चला गया जो कजावे के पुछले हुस्से में लड़का हुआ था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी लेकर हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धुए, फिर चेहरा धोया। उसके बाद नबी पाक ने अपने बाजुओं से आस्तीने ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जुबा ज़ीब तन फरमा रखा था उसकी आस्तीनें तंग थीं, इसलिए वो ऊपर न हो सके। चुनांचे रसूलुल्लाह ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए, पेशानी की मिकदार सिर पर मसह किया, मौजों पर मसह किया और वापसी के लिए सवार हो गए। जब हम लोगों के पास पहुंचे तो नमाज खड़ी हो चुकी थी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़कर एक रकात पढ़ा चुके थे और दूसरी रकात में थे। मैं उन्हें बताने के लिए जाने लगा तो नबी करीम ने मुझे रोक दिया और हमने जो रकात पाई वो तो पढ़ ली और जो रह गई थी उसे सलाम फिरने के बाद अदा किया। यूं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज की एक रकात की इमामत करवाने का शरफ नसीब हो गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की शख्सियत की एक ख़ास खूबी ये है कि अगरचे अल्लाह ने उनको साहब माल और साहब सरवत बनाया था, मगर उसके बावजूद उनके अंदर इल्म भी था, खशियत भी थी और वो बहादुर भी थे। जब किसी बंदे के पास माल आता है तो उसके साथ कुछ वबाल भी आता है, और कम से कम वबाल ये है कि बंदे का मरने को दिल नहीं चाहता। जाहिर है कि जिस शख्स की हर ज़रूरत दुनिया में पूरी हो रही हो, उसकी मर्जी से उसका हर काम हो रहा हो, तो वो क्यों मरेगा? वो तो चाहेगा कि मैं हमेशा जिंदा रहूं और मज़े करूं। दौलत है, बहारें हैं, रोटी है, बोटी है, तो ऐसे बंदे को मौत से डर लगता है। मगर ये वो सहाबी थे कि इतना माल होने के बावजूद भी
मौत से नहीं डरते थे और आपने इस्लाम पर बेहिसाब माल खर्च किया। माल व दौलत की मिकदार का ये आलम था कि उनकी वफात के बाद उनकी विरासत के सोने को लकड़ी काटने वाले कल्हाड़ों से काटकर तकसीम किया गया और काटने वालों के हाथ में चाले पड़ गए। जायदाद गैर मनकूला और नकदी के अलावा 1000 ऊंट और 100 घोड़े और 3000 बिक्रियां छोड़े। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि लकड़ी काटने वाले कल्हाड़े से अगर सोने को तोड़ने की जरूरत पेश आए तो कितना सोना होगा। आपकी 4 बीवियां थीं। बीवी को विरासत का 8वां हिस्सा मिलता है। जब 8वां हिस्सा इतनी बड़ी मालियत का था तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी विरासत कितनी होगी। जंग बद्र के बदरी सहाबा के लिए हदिया आप ये ने अपनी विफात से चंद दिन पहले वसीयत की कि जितने बदरी सहाबा इस वक्त मौजूद हैं, मेरी तरफ से उनमें से हर एक को 4-4 100 दीनार हदिया पेश किया जाए। इस वक्त 100 बदरी सहाबा मौजूद थे। उनमें से हर एक को 400 दीनार हदिया पेश किया गया। क्योंकि हजरत उस्मान गनी भी बदरी सहाबा में से थे, लिहाजा उन्होंने भी अपना हिस्सा वसूल किया। 40,000 दीनार तो ये हो गए जो उन्होंने एक ही दिन में तकसीम करवा दिए। वाकई अल्लाह पाक ने उनके माल से इस्लाम को बहुत फायदा पहुंचाया। आप मुहाजिरीन ओलीन में से हैं। पहले हिबशा और फिर मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो एक अंसारी सहाबी थे जो अमीर अंसारी कहलाते थे। उनका नाम सैद बिन रबिया था। नबी पाक अलिया इस्लाम ने उनके साथ आपकी मुवाखात कायम फरमा दी कि दोनों एक लेवल के बंदे हैं, उनका आपस में भाईचारे का रिश्ता अच्छा रहेगा। हजरत साद बिन रबिया ने कहा कि ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, मेरे पास जितना माल है उसमें से निस्फ मैं अपने पास रखता हूँ और दूसरा निस्फ आप ले लें। नीज मेरी 2 बीवियां हैं, उनमें से जिसके बारे में आप कहीं मैं उसे तलाक दे देता हूँ। उदत के बाद आप निकाह कर लेना। मगर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अल्लाह तुम्हारे माल और इयाल को तुम्हारे लिए मुबारक करे। मेरे साथ इतना भला करो कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। चुनांचा अब्दुर्रहमान बिन औफ बाजार गए और बहुत थोड़े पैसों से काम शुरू किया। अल्लाह पाक ने उनके पैसों में इतनी बरकत दी कि थोड़े दिनों में उन्होंने जमीन खरीद ली और ज़िराअत का काम शुरू कर दिया। फिर तो अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें ही रहमतें हो गईं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के कारोबार में अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रख दी थी और उनको खूब तरक्की हुई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस हाल में आए कि उन पर जर्दी का असर था। उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने एक अंसारी औरत से निकाह कर लिया है। रसूलुल्लाह ने पूछा कि उसे मेहर कितना दिया है। कहा, 1 गुठली के बराबर सोना दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वलीमा करो, चाहे एक बिक्री का ही क्यों ना हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमाने पर उन्होंने वलीमा किया और यूं उनकी उज़दवाजी जिंदगी का सिलसिला शुरू हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर रवाना करना था मगर वसाइल नहीं थे। आपने सहाबा कराम को सिदका की तरगीब दी। चुनांचे अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरे पास 4000 दरहम हैं, उनमें से 2000 राह खुदा में पेश करता हूँ और बकिया 2000 अपने बीवी बच्चों के लिए रखता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक तेरे अता करदा माल में बरकत अता फरमाए और बाकी मांदा माल में भी, यानी जो माल तूने दिया है उसमें भी अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और जो तेरे पास बीच गया है उसमें भी बरकत अता फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बदौलत अल्लाह पाक ने उनके माल में बरकत अता फरमा दी थी। 5 सहाबा कराम का एक ऐसा ग्रुप था जिनका महबूब मुशगला नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत में वक्त गुजारना, इस्लाम की खिदमत करना और आपसे दीन सीखना था। चुनांचा उनमें से कोई न कोई सहाबी दीन सीखने के लिए मौजूद रहते थे। बकिया में से जो कोई किसी जरूरत से कहीं चले जाते तो वापस आने पर दूसरे सहाबी उनको बता देते थे कि आपके जाने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये बात सिखाई। उनमें एक हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। इतना माल व दौलत होने के बावजूद ये शौक होना कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहूं और आपसे दीन सीखूं, ये एक अनोखी चीज है।
ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف بھی ساتھ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں جا کر ایک سجدہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف انتظار کرتے رہے۔ یہ سجدہ اتنا لمبا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کو شک گزرنے لگا کہ کہیں اللہ پاک کے محبوب نے پردہ نہ فرما لیا ہو۔ گھبرا کر قریب آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی گھبراہٹ کی وجہ عرض کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ کیا میں آپ کو یہ بشارت نہ دوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ چونکہ اللہ پاک نے یہ خوشخبری عطا فرمائی اس لیے میں نے شکرانے کا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، حارث تمہیں عبد الرحمن ابن عوف کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، اے اللہ کے حبیب، میں نے انہیں پہاڑ کے دامن میں اس حال میں دیکھا کہ مشرکوں کے ایک گروہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور وہ اکیلے اس گروہ کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ میں انہیں منع کرنے کے لیے آگے بڑھا، اچانک مجھے آپ نظر آئے تو میں آپ کی طرف چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن اکیلا نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو سیدھا عبد الرحمن بن عوف کی طرف چل پڑا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کافروں کی لاشیں پڑی تھیں۔ میں نے پوچھا، عبد الرحمن ان سب کو آپ نے قتل کیا؟ عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان میں سے 2 کو تو میں نے قتل کیا ہے اور باقی 5 کو کسی نادیدہ شخص نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے فوراً کہا، اللہ پاک اور اس کے رسول کریم نے سچ فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے ساتھ اللہ پاک کے فرشتوں کی مدد شامل حال ہو وہ کتنی عظیم شخصیت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وفات ہونے لگے تو انہوں نے 6 آدمیوں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو منتخب کیا اور فرمایا کہ ان میں سے ہر بندہ مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لائق ہے۔ اب یہ کہ آپس میں مشورے سے کسی ایک کو چن لیں، اور تاکید کی کہ 3 دن کے اندر انتخاب کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین کے بعد 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وصیت کے مطابق خلافت 6 آدمیوں میں دائر ہے لیکن اس کو 3 شخصوں تک محدود کر دینا چاہیے، اور جو اپنے خیال میں جس کو مستحق سمجھتا ہو اس کا نام لے۔ حضرت زبیر نے حضرت علی کی نسبت رائے دی، حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام لیا، جبکہ حضرت طلحہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں اپنے حق سے باز آتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ صرف 2 آدمیوں میں منحصر ہے، اور ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سنت شیخین کی پابندی کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد علیحدہ حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس پر ان دونوں کی رضامندی لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور تمام صحابہ کرام مسجد میں جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک مختصر لیکن اہم تقریر کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت علی کا بیعت کرنا تھا کہ تمام حاضرین بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ایک مرتبہ نبی پاک نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، یعنی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ بعد میں کسی موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک باغ امہات المؤمنین کو ایسا مال بطور ہدیہ دیا تھا جو 40,000 میں فروخت ہوا۔ حضرت ابو سلمہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یوں دعا دی کہ اللہ پاک تیرے باپ یعنی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمے سے سیراب کرے، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 4
लाख में फरोख्त किया। अल्लाह पाक ने माल तो दिया था, मगर इस माल का उन्होंने कितना अच्छा इस्तेमाल किया कि उम्महातुल मोमिनीन के सिरों से माश की फिक्र ही हटा दी। एक सहाबी कहते हैं कि मैं एक दफा अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर गया। इस दिन उनका रोजा था। जब उनके सामने अफ्तारी का खाना लाया गया तो कहने लगे कि मुसाब बिन अमीर ही मुझसे अफजल थे। जब वो फौत हुए तो उनको कफन देने के लिए एक ही चादर थी, और वो भी छोटी। अगर सर ढापनते थे तो पांव नंगे रह जाते थे, और अगर पांव ढापनते थे तो सर निगाह हो जाता था। और हमजा ये भी मुझसे अफजल थे, उनको भी एक ही चादर में कफन दिया गया। फिर हम पर दुनिया वसिया कर दी गई और हमें खौफ हुआ कि हमारी नेकियां हमें जल्द दी गई। फिर रोने लगे, यहां तक कि खाना छोड़ दिया। देखें, पूरा दिन रोजे से रहे, मगर इफ्तार के वक्त अच्छे खाने को देखकर अल्लाह पाक का डर पैदा हो गया और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के वाक़या का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए ज़रूर देखें, ताकि आप रसूलुल्लाह के अजीम शागिर्द हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी मुबारक से सबक हासिल कर सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुक्रिया। हजरत उमर फारूक एक मर्तबा शाम तशरीफ ले गए और उस सफर में अब्दुर्रहमान बिन औफ भी साथ थे। जब मकाम सरग में पहुंचे तो उन्हें खबर मिली कि शाम में विबा फैली हुई है। तो उन्हें अब्दुर्रहमान बिन औफ ने खबर दी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम जिस जमीन के मुतालिक सुनो कि वहां वबा फैली हुई है तो वहां न जाओ, और जब किसी जमीन में वबा फैल जाए और तुम वहां मौजूद हो तो वहां से फिरार के इरादा से न निकलो। चुनांचे हजरत उमर सरग से वापस लौट गए, और इब्न शहाब से बतरीक सालिम बिन अब्दुल्ला से मनकूल है कि हजरत उमर फारूक ये सिर्फ अब्दुर्रहमान ही की हदीस की बिना पर वापस हुए। यूं अल्लाह पाक ने इन हस्तियों की ताउन से हिफाजत फरमा दी। हजरत तलहा और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के माबीन ताल्लुकात नाखुशगवार थे। उसी असना में हजरत तलहा बीमार हुए तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। हजरत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने लगे, मेरे भाई अब्दुर्रहमान, अल्लाह पाक की कसम आप मुझसे अच्छे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जवाब दिया कि ऐसे न कहीं। हजरत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने लगे, वाकई ऐसी बात है, बखुदा अगर आप बीमार होते तो मैं आपकी अयादत के लिए ना आता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु भी कहते हैं कि मैंने रसूल करम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ, यानी सिफत रहमत के साथ मुत्तसफ हूँ। मैंने रहम यानी रिश्ते नाते को पैदा किया है और इसके नाम को अपने नाम यानी रहमान के लफ्ज से निकाला है। लिहाजा जो शख्स रहम को जोड़ेगा यानी रिश्ता नाता के हुकूक अदा करेगा तो मैं भी उसको अपनी रहमत खास के साथ जोड़ूंगा, और जो शख्स रहम को तोड़ेगा यानी रिश्ते नाते के हुकूक अदा नहीं करेगा तो मैं भी उसको अपनी रहमत खास से जदा कर दूंगा। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु इंतज़ामी उमूर के बारे में लोगों को खतबा देना चाहते थे। उनका इरादा था कि मैं हज के मौके पर यह खतबा दूं। अब्दुर्रहमान बिन औफ करीब आए और कहा, अमीर अल मोमिनीन, मेरा मशूरा है कि आप यहाँ खतबा न दें, वापस मदीना जाकर खतबा दें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्यों? कहा, उस लिए कि हज के मौके पर दौर करीब से आए हुए आम लोगों का मजमा ज्यादा है। आप इंतजामी उमूर में कोई खतबा देंगे तो मुमकिन है ये लोग रद्द-ए-अमल दिखाएं, जो कि मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा आप मदीना वापस जाकर ये खतबा देंगे तो वहाँ सहाबा मौजूद हैं, वो आपकी बात को तस्लीम करेंगे, और जब सहाबा तस्लीम कर लेंगे तो अवामुन नास का तस्लीम करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। हजरत उमर फारूक ने उनके मशूरे को पसंद किया और उनकी फरासत की दाद दी, और वापस आकर मदीना तीबा में ही वो तकरीर फरमाई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक दिन हजरत उमर फारूक की मजलिस में बैठे थे। हजरत उमर ने पूछा कि आपने रसूलुल्लाह का हमसे इस बारे में कोई फरमान सुना है कि आदमी को नमाज में सहू हो गया तो वो क्या करे? मैंने अर्ज
क्या कि मैंने इस बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से कोई बात नहीं सुनी। फिर मैंने हज़रत उमर फारूक से पूछा कि क्या आपने भी इस मसीला के बारे में कोई फरमान नहीं सुना? हज़रत उमर ने जवाब दिया कि नहीं। उसी दौरान हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आ पहुंचे और पूछा कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? हज़रत उमर फारूक ने बताया तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में हुक्म देते हुए सुना है। हज़रत उमर ने पूछा कि आपने क्या बात सुनी है? तब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुंदरजा झेल हदीस मुबारका सुनाई, जब तुम में से किसी को नमाज में सहू हो जाए और उसे याद न हो कि मैंने कुछ रकातें ज़्यादा पढ़ ली हैं या मुकर्रा तादाद से कोई रकात कम पढ़ी है, चुनांचा अगर 1 या 2 में शक हो तो वो 1 रकात शुमार करे, और जब 2 या 3 में शक हो तो 2 रकातें शुमार करे, और जब 3 और 4 में शक हो तो 3 शुमार करे। यूं अपनी बकिया रकातें पूरी करे और इतियात में बैठने की हालत में सलाम फेरने से पहले सहू के 2 सजदे कर ले और फिर उथियात वगैरह मुकम्मल करके सलाम फेर दे। जब हज़रत उमर फारूक हज के लिए तशरीफ ले गए तो एक आदमी ने मसला पूछा कि हज़रत साहब, हम 2 बंदे आ रहे थे, एक जगह पर हमने एक हिरन को देखा तो इहराम की हालत में उसको शिकार कर लिया। अब बताएं कि मेरे ऊपर कोई दम वाजिब है या नहीं? हज़रत उमर फारूक साहब ने एक आदमी से जो करीब खड़ा था कहा, आओ हम मिलकर इस बारे में फैसला करते हैं। फिर हज़रत उमर फारूक इस बंदे से बातचीत करने लगे और बलाखिर फैसला ये हुआ कि इस बंदे हमेशा से ही ऐसा ही करता रहा है, को एक बकरी कुर्बान करनी पड़ेगी, यानी दम देना पड़ेगा। जब उस बंदे को दम देने के लिए कहा गया तो वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, वैसे तो अमीर अल-मोमिनीन बने हुए हैं, लेकिन एक मसले का फैसला करने के लिए उनको ताउन की ज़रूरत होती है। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, तुम जानते हो कि मैंने किसके साथ मशूरा किया है? उसने कहा, नहीं। फरमाया, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, जो अमीन हैं, जो आदिल हैं और जिनकी इल्मियत पर बड़े बड़े सहाबा को भी एतबार है। क्या तुमने सूरह माइदा पढ़ी है? उसने कहा, मैंने नहीं पढ़ी। फरमाया, अगर तूने पढ़ी होती तो मैं तुझे सजा देता। सूरह माइदा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका फैसला तुम में से 2 दियानतदार तजर्बाकार आदमी करेंगे। लिहाजा जब कुरान कह रहा है कि 2 मुतबर बंदे मिलकर फैसला करें, तो मैंने एक मोतबर बंदे को साथ ले लिया और हम दोनों ने कुरान पाक की आयत पर अमल करके तुम्हारे बारे में ये फैसला किया है। और उससे अंदाजा लगाइए कि हज़रत उमर की नज़र में अब्दुर्रहमान बिन औफ का फ़क़ही मकाम किया था। हज़रत इंस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा सदीक़ा अपने घर में बैठी थीं कि मदीना मनूरा में कहीं से शोर की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पूछा, ये कैसी आवाज़ है? लोगों ने बताया कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का काफ़िला शाम से आया है और उसमें हर चीज़ मौजूद है। रावी कहते हैं कि ये काफ़िला 700 ऊँटों पर मुश्तमिल था। हज़रत आयशा सदीक़ा ने कहा कि मैंने नबी करीम की ज़बान मुबारक से सुना है, मैंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को घुटनों के बल घुसते हुए जन्नत में दाखिल होते हुए देखा है। एक होता है तेज चल के जाना, एक होता है चल के जाना और एक होता है रेंगना। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रेंगने हुए जन्नत में दाखिल होंगे, यानी मुश्किल से जन्नत में जाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ तक ये बात पहुंची तो उनके दिल पर बड़ा खौफ सवार हुआ और कहने लगे कि अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो मैं खड़ा होने की हालत में ही जन्नत में दाखिल होऊंगा। इतना कहा और ऊँटों का सारा सामान हती कि रस्सियां भी अल्लाह पाक के रास्ते में खर्च कर दें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को अर्रजी की बीमारी थी, चुनांचा आम कपड़ा पहनते तो वो बीमारी बढ़ जाती थी। चुनांचा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुसूसी तौर पर आपको रेशम का लिबास पहनने की इजाज़त दी थी। उस वजह से ज़्यादातर रेशम का कपड़ा पहनते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह पाक के रास्ते में कसरत से खर्च करने वाले थे। बाज़ मर्तबा एक ही दिन में 30-30 गुलाम आज़ाद कर दिया करते थे। ग़ज़वा ही अहद के मौके पर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 200 औक़िया चांदी बतूर सिदक़ा पेश की। हज़रत उमर फारूक ने 100 औक़िया और हज़रत आसिम इंसारी ने 9 वस्क़ खजूर सिदक़ा की,
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ये कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मुझे लगता है कि अब्दुर्रहमान अपने घर वालों को कंगाल करके आ गया है और अपने घर वालों के लिए पीछे कुछ नहीं छोड़ा। नबी करीम ने उनसे पूछा, क्या तुमने कुछ अपने अहल खाना के लिए भी छोड़ा है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जवाब दिया, जी हाँ। पूछा, कितना छोड़ आए हो? अर्ज किया, जितना अल्लाह पाक और उसके रसूल ने रिज्क और भलाई के बारे में वादा किया है। अल्लाह के प्यारे हबीब अब मदीने के सुल्तान ने एक जंग के लिए लश्कर रवाना करना था, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सिर पर अमामा बांधा और उसका शमला उनके कुंधों के दरमियान लड़का दिया और फरमाया, अगर अल्लाह पाक तुम्हें इस महम में फतह नसीब फरमाए तो तुम उनके सरदार की बेटी के साथ निकाह कर लेना। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजीब हिकमत अमली थी कि आप मुख्तलिफ दुश्मन कबीलों को करीब करने के लिए ये मामला फरमाया करते थे कि जिस कबीले पर फतह होती थी उसके सरदार की बेटी से खुद निकाह फरमा लेते थे। तब क्या होता था कि वो कबीला नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ रिश्तेदारी में मुंसलक हो जाता था, फिर उसके बाद वो कबीला मुसलमानों के खिलाफ तलवार नहीं उठाता था। इसलिए नबी करम ने जो मुख्तलिफ शादियां फरमाएं, गौर करें तो उन शादियों में यही हिकमत थी, हर शादी के बदले एक एक कबीला हमेशा के लिए मुसलमानों का दोस्त बन गया और उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। जब खैबर फतह हुआ तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सफिया ही से निकाह फरमाया। ये उनके बादशाह की बहू थी, शहजादे की बीवी थी। चुनांचा उसके बाद आखिरी वक्त तक यहूदियों ने दोबारा नबी करीम अलैहिस्सलाम से जंग नहीं की। यही कामयाब पॉलिसी नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी बताई। अल्लाह पाक की शान के कबीला मुसलमान हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस कबीले के सरदार की बेटी से निकाह किया। उन्हीं के बतन से आपके बेटे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान की विलादत हुई। माल के बावजूद सफ अव्वल के नमाजी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु नमाज फजर की इमामत फरमा रहे थे तो फैरूज नामी एक शख्स ने आप पे हमला किया जो आपकी शहादत का सबब बना। हजरत उमर फारूक जख्मों की वजह से गिर गए। उनके पीछे अब्दुर्रहमान बिन औफ भी खड़े थे। आप अंदाजा लगाइए कि एक शख्स के पास इतना माल हो और फिर वो पहली सफ का नमाजी भी हो। ये हैरान कुन मामला है, वरना आम तौर पर देखा गया है कि जिन लोगों के पास माल और दौलत की फरावानी होती है वो इबादत के मामले में सस्ती करते हैं, आते भी हैं तो पछली सफ़ों में खड़े होते हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दीन और दुनिया को इस तरह इकट्ठा किया कि एक तरफ तो इतने मालदार थे और दूसरी तरफ पहली सफ में इमाम के बिल्कुल पीछे नमाज पढ़ने वाले थे। चुनांचा जब हजरत उमर फारूक जख्मी होकर गिर गए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ इमामत के लिए आगे बढ़े। इत्मीनान से नमाज मुकम्मल हुई। फिर हजरत उमर को उठाया। उससे नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाना चाहिए कि अमीर अल मोमिनीन का खून निकल रहा है, वो तड़प रहे हैं और कौम पहले नमाज मुकम्मल करती है, बाद में अमीर अल मोमिनीन की देखभाल करती है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माना खिलाफत में 75 साल की उम्र में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का इंतकाल हुआ। आपकी नमाज जनाजा सैयदना उस्मान गनी ने पढ़ाई और आपको जन्नत अल बकिया में दफन किया गया। हजरत साद बिन अबी वक़ास जनाजा उठाने वालों में शरीक थे और रोते हुए कह रहे थे, यानी आज पहाड़ जैसी अजीम शख्सियत वफात पा गई। जिस दिन आपकी वफात हुई तो हजरत अली साहब को मुंदरजा झील अल्फाज कहते हुए सुना गया, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, जहाँ तूने दुनिया का साफ पानी पा लिया और गदला छोड़ दिया। यानी अल्लाह पाक ने आपको इतना ज्यादा माल दिया था मगर आपने दीन को कबूल कर लिया और जो दुनिया की ज़ैब वजीनत थी उसको छोड़ दिया। अल्लाह पाक के हबीब ने अपना एक ऐसा शागिर्द तैयार किया कि क़ियामत तक आने वाले अमीर लोग अगर दीन पर चलना चाहेंगे तो उनकी ज़िंदगी में अब्दुर्रहमान बिन औफ की मिसाल सामने रहेगी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सहाबी रसूल और इशरा मुबश्शिरा में से थे। उनका एक मशहूर वाक़या उनकी तिजारत और दौलतमंदी से मुताल्लिक़ है। वाक़या यूं है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक बार तिजारत की गरज से माल लेकर सफ़र किया। जब वो वापस आए तो उनका काफ़िला बहुत बड़ा था और उनके पास बेशुमार माल और दौलत थी। यूं जब वो
मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उन्होंने अपने माल का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह पाक की राह में खर्च करने का फैसला किया। उन्होंने अपने माल में से सैकड़ों ऊंट, घोड़े और दीगर कीमती अशिया अल्लाह पाक की राह में वक्फ कर दें। ये इतना बड़ा अतिया था कि मदीना मुनव्वरा की गलियां उनके काफिले से भर गईं। लोगों ने ये मंजर देखा तो हैरान रह गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की इस सखावत पर रसूलुल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को दुनिया में ही जजा दे दी। ये वाक़या उनकी बेपुनाह सखावत और अल्लाह की राह में माल खर्च करने की अजीम मिसाल है। उन्होंने अपनी दौलत को सिर्फ अपनी खुशहाली के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया, जो उनके ईमान और तक़वी की इक्कासी करता है। अल्लाह पाक हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में उनके कदमों में हमें भी जगह अता फरमाए। मुसलमानों के लिए एक नसीहत ये है कि हमेशा तक़वी और इखलास को अपने एमाल की बुनियाद बनाएं। अल्लाह पाक के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, नमाज कायम करें और कुरान पाक की तालीमात पर अमल करें। रसूलुल्लाह पाक की बताई गई बातों को अपनाएं और उनके इस्वा हुस्ना की पैरवी करें। दूसरों के साथ रहम दिली, इंसाफ और हुस्न सलूक का मज़ाहिरा करें। माल और दौलत को अल्लाह पाक की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें और गरीबों, मुस्कीनों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अपने दिल में किसी के लिए बग़ज़, हसद या तकब्बुर न रखें, बल्कि मोहब्बत, अखूत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। याद रखें कि दुनिया फ़ानी है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की हदायत पर चलाएं और हर कदम पर इस बात को मुदंजर रखें कि हमारे अमाल का हिसाब होगा। अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आखिरत के बारे में इस्लाम में बहुत वाज़ेह तालीमात हैं। आखिरत का यकीन हर मुसलमान के ईमान का अहम हिस्सा है। कुरान पाक और अहादीस में आखिरत के दिन, क़यामत, हिसाब व किताब, जन्नत और जहन्नम के बारे में तफसील से बयान किया गया है। यहाँ आखिरत से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात पेश खिदमत हैं कि क़यामत वो दिन होगा जब पूरी कायनात तबाह हो जाएगी और अल्लाह पाक तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा। उस दिन हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। कुरान पाक में है कि जिस दिन लोग क़यामत के लिए उठ खड़े होंगे, उस दिन कोई चीज़ अल्लाह से पुशीदा नहीं होगी। क़यामत के दिन हर शख्स के अमाल का हिसाब होगा। नेक अमाल वालों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जबकि बुरे अमाल वालों को जहन्नम की सज़ा मिलेगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तो जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। पता है जन्नत, ये जन्नत नेक लोगों का मकाम है, जहां उन्हें हर किस्म की नामतें, खुशियां और अल्लाह पाक की रज़ा मिलेगी। जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी होगी और वहां कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी। और पता है कि जहन्नम, ये जहन्नम गुनाहगारों और काफिरों की सज़ा का मकाम है, जहां उन्हें शदीद अजाब और तकलीफ का सामना होगा। जहन्नम की आग बहुत ही दर्दनाक और होलनाक होगी। क़यामत के दिन हर शख्स के अमाल का वज़न किया जाएगा। नेक अमाल वालों का मीज़ान यानी तराजू भारी होगा, जबकि बुरे अमाल वालों का मीज़ान हल्का होगा। कुरान पाक में इरशाद है, बस जिसका मीज़ान भारी होगा वही खुश व खर्म ज़िंदगी गुजारेगा, और जिसका मीज़ान हल्का होगा उसका ठिकाना हाविया यानी जहन्नम होगा। हर मुसलमान को आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये तैयारी नेक अमाल, तक़वी और अल्लाह पाक की रज़ा के हुसूल के ज़रिए होती है। रसूलुल्लाह पाक ने फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, यानी दुनिया में जो कुछ हम बोते हैं आखिरत में वही काटेंगे। आखिरत की याद दिलाने वाली चीज़ों को अपने दिल में ताज़ा रखें, जैसे मौत, कब्र और क़यामत। ये याद दहानी हमें गुनाहों से बचाती है और नेकी की तरफ रागिब करती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा बाकी रहने वाली है। इसलिए हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी को इस तरह गुजारना चाहिए कि हम आखिरत में कामयाब हो सकें। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए नेक अमाल करें, गुनाहों से बचें और दूसरों के साथ एहसान और इंसाफ का सलूक करें। आखिरत की तैयारी ही हकीकी कामयाबी है। अल्लाह पाक हम सबको आखिरत के अजाब से बचाए और जन्नतुल फरदौस में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए।
क्योंकि जिंदगी की हकीकत ये है कि हम सब एक दिन रुखसत हो जाएंगे, लेकिन वो अमल जो हमने दुनिया में किए हैं हमें हमेशा जिंदा रखते हैं। हमारी दुआओं की तासीर, हमारे अच्छे एमाल की गूंज और वो मोहब्बत जो हमने दूसरों को दी वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमारे दिल में हमेशा के लिए नश्क हो जाता है। आएं हम अपने हर अमल में अल्लाह पाक की रिजा को तरजीह दें, अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारें कि जब हम दुनिया से रुखसत हों तो हमारी यादें दूसरों के दिलों में जिंदा रहें। ये जिंदगी एक कीमती तोहफा है और हम उसके हर लम्हे को इस तरह गुजारें कि हम उससे बेहतरीन फायदा उठा सकें। अल्लाह पाक हमें अपनी हदायत दे और हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे। ए अल्लाह पाक, हम तुझसे दुआ गो हैं कि हमें अपनी हदायत की रोशनी अता फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब कर। हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हम पर अपनी रिजा की राहें खोल दे। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमारी जिंदगियों को अपने इनामात से भर दे। हमें अपने प्यारों के साथ खुशियों का लम्हा अता कर और हमें हमेशा अपनी हिफाजत में रख। आमीन तुम आमीन। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो बुरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तला मिल सके। याद रखें, दुनिया की तमाम खुशियां आरज़ी हैं, लेकिन अल्लाह पाक की रिज़ा और आखिरत की कामयाबी हमारी असल मंजिल है। उसके रास्ते पर चलना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए।